Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well and you are preparing pretty well for the Junior Scientific Assistant examination, right? So, this is the second part. I have already posted the part 1, and before the part 1, I have posted the whole strategy that how you can prepare for this examination, right? So, you need to watch that, and after that, you can watch the part 1, which consists of question number 1 to 30. So therefore in this video I will continue that series from question number 31. If you are a newbie, do subscribe the channel for premier life science content, and if you generally find the content useful and beneficial for you in your preparation, then do like it because it will motivate me to make more such content. Also, one more addition, do follow me on Instagram for important life science content in a very interesting way. And also, if you are associated with the research, then it will be very much fruitful for you. So without further delay, let's start the video. So question number 31 says the resting membrane potential in animal cells is primarily maintained by. So what do you mean by resting membrane potential? You need to memorize each and everything of the question. You don't need to like रटना यहाँ पे नहीं है. You need to अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट कि जो भी क्वेश्चन में पूछा है व्हाट डज इट मीन्स, राइट? सो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जिसे हम RMP कहते हैं, व्हाट इज RMP? सो बेसिकली दिस इज द इलेक्ट्रिकल वोल्टेज डिफरेंस अक्रॉस अ सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन व्हेन इट इज नॉट एक्टिवली सेंडिंग सिग्नल. रेस्ट पे है मतलब नॉट सेंडिंग सिग्नल, ठीक है, इजी है समझना. यानी कि जब हमारे सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो इन्वॉल्व नहीं है किसी तरह के सिग्नलिंग में, सो उस टाइम पे कितना होता है? इट इज यूजुअली -70 टू -90 मिली वोल्ट्स. ठीक है, बहुत सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको कोशिश कर रही हूँ देने की ताकि आपको एग्जामिनेशन में किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना हो. ठीक है, सो इट इज मेंटेन्ड बाय आयन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स एंड सिलेक्टिव मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी. सो ये किसके थ्रू होता है? वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, सोडियम पोटेशियम ATPase, कैल्शियम ATPase, क्लोराइड चैनल. सो इट इज मेंटेन्ड बाय दिस सोडियम पोटेशियम ATPase. वी हैव प्रीवियसली रेड दैट कितना 3Na आउट जाता है, यानी 3 सोडियम आउट एंड 2 पोटेशियम इन. ठीक है, सो दिस इज द आंसर. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. Which organelle is primarily responsible for phospholipid synthesis? Rough endoplasmic reticulum, smooth ER, Golgi apparatus, peroxisome. So we know that smooth endoplasmic reticulum, which lacks ribosome, is involved in the synthesis of phospholipid. So right answer is B. Next one, which cytoskeleton element is directly involved in cytokinesis? Microtubule, intermediate filament, actin microfilament, centriole. So actin microfilaments are directly involved in cytokinesis, right? Next one, which statement about lysosome is false? They contain acid hydrolases. This is true. Their internal pH is acidic because of acidic enzymes. ये भी सही है. Their enzyme function optimally at neutral pH. Neutral pH पे कैसे काम करेंगे? This is the wrong option and right answer for this question. They participate in autophagy. Yes, this is also right because they are rich in hydrolytic enzymes. Now next one. Quickly we have to cover so many questions so that you can prepare, and within a few seconds you have to answer the question so that it will save your time. You can solve more, you can earn more marks, and you can ensure your selection. The enzyme catalase protects cell by degrading ATP, H2O2, CO2, lactate. So we know that enzyme catalase is responsible for breakdown of the hydrogen peroxide. ठीक है, so right answer is H2O2. Which membrane protein act as a receptor for extracellular signaling molecule? Integrin, GPCR, tubulin, actin. So it is GPCR which act as a, like it is a 7 transmembrane serpentine receptor. You know that, like this way it has 7 it is known as 7 transmembrane serpentine receptor, G protein coupled receptor. So right answer is option B. The Golgi apparatus was first described by.
It is very easy. You know that Camillo Golgi, and hence the name Golgi body or Golgi apparatus. Next question. Which protein is mainly responsible for intracellular vesicle movement? Histone, tubulin, dynein and kinesin, lamine. So the protein which is mainly responsible for intracellular vesicle movement is nothing but the dynein and the kinesin. ठीक है? Next question. Microvilli contain bundles of. So you have to write also the notes or the crisp points of how we are solving the question so that you will prepare your own notes. ठीक है? तो यहाँ पे बताना है आपको कि माइक्रोविलाई कंटेन्स बंडल ऑफ व्हाट. माइक्रोविलाई आर बेसिकली टाइनी, ठीक है, फिंगर like projections, and they contain bundles of actin filament, not tubulin, not intermediate, not keratin. So these they are responsible for providing the structural support, right? They also contain cross-linking proteins like fimbrine and villine. ठीक है, माइक्रोविलाई और भी प्रोटीन्स रखता है जो कि है फिम्ब्रिन एंड विलिन. तो आपको जितना इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मैं देने की कोशिश करूंगी. विथ सेल जंक्शन प्रिवेंट्स लीकेज बिटवीन एपिथेलियल सेल. लीकेज से कौन बचाएगा? टाइट जंक्शन. जितना टाइट बंद करोगे बॉटल उतना लीकेज का कम चांस रहेगा. सो लाइकवाइज टाइट जंक्शन. यू कैन वॉच दी गैप जंक्शन रिलेटेड थिंग. ठीक है, गैप जंक्शन क्या होता है, हेमिडेस्मोसोम क्या होता है, डेस्मोसोम क्या होता है, बेसिकली एंकरिंग जंक्शन और ये सारी चीज़ें जो हैं वो मेरे चैनल पे सेपरेट वीडियो है इन वेरी वेरी शॉर्ट, लाइक यू कैन जस्ट लर्न इन 10 मिनट्स. तो वो वीडियो जाके देखो, बिकॉज ये वीडियो से क्वेश्चन, मतलब ये टॉपिक से क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं. ठीक है. नेक्स्ट वन. इंटरमीडिएट फिलामेंट मेनली प्रोवाइड सेल मोटिलिटी, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, एटीपी सिंथेसिस, प्रोटीन सिक्रेशन. सो जो इंटरमीडिएट फिलामेंट है वो इन्वॉल्व होता है टू प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ. ठीक है, टू रेजिस्ट द मैकेनिकल स्ट्रेस, देयरफॉर इट इज प्रोवाइडिंग द मैकेनिकल स्ट्रेंथ. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच मॉलिक्यूल स्टेबिलाइजेज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन एनिमल सेल? ग्लाइकोजन, कोलेस्ट्रॉल, सेल्यूलोज, काइटिन. सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कौन सा इनमें से मिलता है? सो इन एनिमल सेल it is rich in, like plasma membrane is rich in cholesterol that provides fluidity. ठीक है, ये जितने क्वेश्चंस हैं वो इतने बेसिक क्वेश्चन है. अगर आपने स्टार्ट किया होगा सेल बायोलॉजी पढ़ना तो ये सभी आपने पढ़ा होगा, बट हम क्या करते हैं, एडवांस लेवल के चक्कर में भूलने लगते हैं. सो यू नीड टू रिवाइज इट. न्यूक्लियर पोर्स आर कंपोज्ड ऑफ हिस्टोन, न्यूक्लियोपोरिन्स, ट्यूबुलिन, लैमिन्स. सो न्यूक्लियर पोर्स आर कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लियोपोरिन्स. Next one. Which organelle is absent in prokaryotes? You need to answer it very quickly. Mitochondria नहीं रहता है क्योंकि prokaryotes like membrane bound organelles. ठीक है. The largest membrane bound organelle in most eukaryotic cell is Golgi apparatus, lysosome, nucleus, peroxisome. So largest जो होता है nucleus. ठीक है. The fluid mosaic model was proposed by Singer and Nicholson and which year? 1972. ईयर भी इंपॉर्टेंट है, ईयर भी आपको पूछा जा सकता है. प्रोटीन डिग्रेडेशन वाया यूबिक्विटिनेशन अकर्स मेनली इन. प्रोटीन डिग्रेडेशन थ्रू यूबिक्विटिनेशन कहाँ पर होता है? प्रोटियाजोम में, लाइसोसोम में, गोल्जी में, एसीआर में. सो यू नो दैट प्रोटियाजोमल डिग्रेडेशन ऑफ प्रोटीन टेक्स प्लेस इन प्रोटियाजोम, राइट? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. Which organelle has the highest membrane surface area? सबसे ज़्यादा बड़ा सरफेस एरिया किसका होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का. और वो पता नहीं चलता बिकॉज इट हैज़ एक्सटेंसिव नेटवर्क. ठीक है, वो ऐसा कंटिन्यूसली इस तरह से कॉइल्ड रहता है तो पता नहीं चलता कि कितना सरफेस एरिया है. नेक्स्ट वन. द एंजाइम सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज इज लोकेटेड इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. ठीक है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कहाँ होता है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. हमने ईटीसी पढ़ा है, कॉम्प्लेक्स 2 के बारे में बात हो रही है. फर्स्ट क्या होता है? एनएडीएच डिहाइड्रोजिनेज. नेक्स्ट वन. द न्यूक्लियोलस इज द साइट ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, राइबोसोम बायोजेनेसिस, लिपिड सिंथेसिस, प्रोटीन डिग्रेडेशन. सो द न्यूक्लियोलस इज द साइट ऑफ राइबोसोम बायोजेनेसिस. ठीक है, न्यूक्लियोलस में ही राइबोसोम बनता है.
नेक्स्ट वन, वेट, which transport process does not require carrier protein? Facilitated, active, simple, secondary active transport. So we know that in simple diffusion we do not need any type of carrier protein, right? Other than simple diffusion we need carrier protein for all the three. Clathrin coated vesicles, yes, clathrin coated vesicles are involved in photosynthesis, receptor mediated endocytosis, protein translation, glycolysis. So it is receptor mediated endocytosis. ठीक है. Now you also will agree that ये सारे जो questions है बहुत ही standard and basic questions हैं. अगर आप इनके आंसर कर पा रहे हैं, I will try to make some more easy question in the third and fourth video, fourth lecture also, ताकि आपका बेसिक पूरा रिवाइज हो जाए. फिफ्थ लेक्चर से वी विल स्टार्ट सम डिफिकल्ट एंड एडवांस क्वेश्चंस. ठीक है. यहाँ पे मेरा एम सिर्फ ये है कि इनिशियली आपको पूरी चीज़ें रिवाइज करानी है ताकि आप बेसिक क्लियर कर लें, एंड देन यू विल बी एबल टू आंसर इवन दी advanced one, difficult one also. So clathrin coated vesicles are involved in basically the endocytosis. Which organelle contain the enzyme cytochrome oxidase? आंख बंद करके आपको आंसर लगाना है माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है. इन सब क्वेश्चंस में बिल्कुल भी मिस्टेक की अब कोई बात नहीं रहनी चाहिए. The primary function of caveoli is DNA replication, endocytosis and signaling, ATP production, translation. So they are involved in endocytosis and signal transduction. Next one, which cellular component anchors chromosome during mitosis? Mitosis के टाइम पे जो कौन सा ऑर्गेनील जो इम्पॉर्टेंट है या कौन सा सेल्यूलर कंपोनेंट क्रोमोसोम्स को पकड़ के रखता है. ठीक है. सो इट इज वॉट? किनेटोकोर. ठीक है. किनेटोकोर क्या करता है? इट एंकर्स द क्रोमोसोम ड्यूरिंग माइटोसिस. नेक्स्ट वन, द सेंट्रोसोम डुप्लीकेट्स ड्यूरिंग विच फेज? G2, G1, S और M फेज. सो द सेंट्रोसोम डुप्लीकेट्स. डुप्लीकेशन कब होगा सेंट्रोसोम का? सिंथेसिस फेज में. नेक्स्ट वन, विच प्रोटीन पॉलीमराइज टू फॉर्म माइक्रोफिलामेंट? अभी जस्ट हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था. ठीक है. तो कौन सा प्रोटीन जो है वो बहुत सारे उसके आप यूनिट्स लगा देंगे तो बन जाएगा माइक्रोफिलामेंट. सो इट इज एक्टिन. अभी हमने जस्ट ऊपर एक क्वेश्चन सॉल्व किया था. ठीक है. माइक्रोविलाई से भी रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किया था. तो माइक्रोविलाई भी क्या होता है? बंडल ऑफ एक्टिन फिलामेंट. नेक्स्ट वन, विच ऑर्गेनील प्लेज अ मेजर रोल इन एंटीजन प्रोसेसिंग इन इम्यून सेल? ठीक है. एंटीजन प्रोसेसिंग में कौन इन्वॉल्व रहता है? लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम, स्मूथ या न्यूक्लियोलस? सो इट इज द लाइसोसोम. अगर आपको नहीं पता था तो लाइसोसोम जो है इट डिग्रेड्स प्रोटीन इनटू पेप्टाइड्स फॉर एमएचसी प्रेजेंटेशन. हमें पता है कि एंटीजन का प्रोसेसिंग होके फिर उसे प्रेजेंट किया. जैसे ये एंटीजन है किसी तरह का, तो इसे हमें क्लीव करके इसके इसी के पोर्शंस को तो क्या करता है? एमएचसी प्रेजेंट करता है. सो फॉर दिस वी नीड लाइसोसोम. तो लाइसोसोम का रोल इन्वॉल्व है इन एपीसी. विच मॉलिक्यूल इज प्रिंसिपल एनर्जी करेंसी ऑफ द cell? You know that ATP is the energy currency of the cell. Which statement is correct regarding peroxisome? They synthesize ATP, they contain catalase, they possess their own DNA, they synthesize ribosome. So कौन सा correct है इसमें से? They contain catalase and rest of the statements are wrong. कभी भी correct या incorrect पूछता है तो इससे आपको ये पता चलता है कि कौन सा question, जैसे कौन से points सही हैं, और अगर आपको फॉल्स पता चल जाए तो आपको तीन जो ऑप्शन है वो करेक्ट पता चलते हैं, जिसकी वजह से आप अपने नोट्स मेंटेन कर सकते हैं. ठीक है. तो और भी इसी तरह से पढ़ने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. एंड प्लीज डू फॉलो दी शॉर्ट्स एंड ऑल्सो कम्युनिटी पोस्ट, इंस्टाग्राम. आई ट्राई माई बेस्ट कि हर एक प्लेटफॉर्म पे आप जब भी विजिट करें मेरे, तो आपको हमेशा कुछ ना कुछ गेन ही हो, कभी भी कुछ मतलब ऐसे बेकाम की चीज़ें ना दिखें. ठीक है. So I hope this session is fruitful for you. Please hit the like button and thank you so much for watching. See you in the next one.